Here is the first question of miscellaneous type. Question B from exercise question number 9, given on textbook page number 72. Liquid ammonia is used in the ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kilogram of ice at 0 degrees Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? तो 2 किलोग्राम आइस अगर बनाना है वाटर से, तो ऐसे में उस पानी में कितना लिक्विड अमोनिया आपको ऐड करना होगा? They have given the latent heat of vaporization for ammonia, that is 341 calories per gram. Now let's try to solve it. Now this particular mathematical problem can be included under type 3. Miscellaneous examples or mixed type, because we have to use multiple formulas in the same question. Let's write down the given things first. The mass of water is given M1, that is 2 kilogram, and we have to convert this water having temperature 20 degrees Celsius into ice at 0 degrees Celsius. Now since there is decrease in temperature, we need to find out delta T1 first. So delta T1 is equal to T1 minus T2, higher temperature minus lower temperature. तो कितना आ रहा है? 20 minus 0, 20 degrees Celsius. That is the value of delta T1. Along with that, they have given specific heat of water. Specific heat of water, क्योंकि हमारा मास किलोग्राम में है, तो स्पेसिफिक हीट भी हम लिखेंगे किलो कैलोरीज में. 1 किलो कैलोरी per kilogram degree Celsius. Also, since there is conversion of water into ice, we need L1, that is latent heat of fusion of ice. We know the values, 80 kilocalorie per kilogram. Then latent heat of vaporization of ammonia, L2, is given in the mathematical problem itself. That is 341 calories per gram. But since the masses are given in kilogram, we have to convert it into kilocalorie. 341 kilocalorie per kilogram. So from this given thing, what you have to find out? The amount of liquid ammonia required, that is mass of ammonia M2, we have to calculate. So important formula which we are going to use is M into C into delta T. Let's see the solution. Here there are two important substances, water and ammonia. Now water is hot as compared to liquid ammonia, which is having temperature 20 degrees Celsius. So water here is going to lose some heat, whereas liquid ammonia will going to absorb heat. Water का conversion ice में होने वाला है, तो obviously water heat lose करेगा और ammonia heat absorb करेगा. So amount of heat lost by water, कितना हीट ये वाटर लूज करेगा. नाउ हियर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट ऑफ वाटर, वी हैव टू यूज बोथ द फॉर्मूला M1 C1 delta T1 plus M1 L1. See, this formula is useful for conversion of water into ice. वाटर का कन्वर्जन आइस में हो रहा है, तो ये कन्वर्जन के लिए कितना हीट लगेगा वो हम इस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं, M1 into L1. और जब वाटर का टेम्परेचर आइस में हो रहा है, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो उस डिक्रीज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, उस डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिए कितना हीट लगेगा वो हम इस फॉर्मूला से ढूंढेंगे, MC डेल्टा T. लेकिन फर्स्ट वाला
है, इसके लिए हम यूज करेंगे M1 C1 डेल्टा T1. Let's write down the values. M1 mass 2 kilogram, C1 specific heat of water 1 and delta T1 जो कि हमने कैलकुलेट किया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस अगेन mass of water 2 kilogram into latent heat of fusion is 80 calories per kilogram. After multiplication we get 40 plus 160, that is 200 kilocalories, the amount of heat lost by water. Then amount of heat absorbed by liquid ammonia. Liquid ammonia ऐड करने के बाद वाटर का कन्वर्जन आइस में हो रहा है, यानी जितना हीट वाटर लूज कर रहा है उतना ही हीट अमोनिया एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हीट एब्जॉर्ब बाय अमोनिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल फॉर्मूला M2 into L2. M2 that is mass of ammonia into L2 latent heat of vaporization. जैसे ही लिक्विड अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करेगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो latent heat of vaporization is needed. So M2 we don't know the value. So M2 into L2, that is 341 kilocalories. Now according to principle of heat exchange, both these values Q1 and Q2 must be equal. So according to principle of heat exchange, Q1 is equal to Q2. Amount of heat lost by the water is equal to amount of heat absorbed by the ammonia. So अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना हीट लॉस्ट किया है वाटर ने 200 किलो कैलोरी, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय लिक्विड अमोनिया M2 into 341. Now we want to find out the value of M2, so this 341 goes to another side in the denominator. So 200 divided by 341, after calculation we get the answer 0.5865 किलोग्राम. हमें आंसर मिल रहा है किलोग्राम में. If you want it to convert into gram, we have to simply multiply it by 1000. 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा ग्राम्स में, that is 586.5 gram. That is the mass of liquid ammonia used for this conversion. The second problem is from again exercise question number 9C on textbook page number 72. A thermally isolated pot has 150 gram of ice at temperature of 0 degrees Celsius. How much steam of 100 degrees Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degrees Celsius will be obtained? Along with this problem, they have given latent heat of melting of ice 80 calorie per gram, latent heat of vaporization of water, that is 540 calories per gram, and specific heat of water is given 1 calorie per degree Celsius. So let's try to solve it. Now let's write down the given things first. The thermally isolated pot has mass M1, that is 150 gram. It contains ice having temperature 0 degrees Celsius. So thermally isolated pot will also have the temperature 0 degrees Celsius. Then after adding steam into that pot, उस थर्मली आइसोलेटेड पॉट में 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम एंटर करने के बाद फाइनल वाटर जो मिलेगा उसका मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस. सो फॉर आइसोलेटेड पॉट डेल्टा T1, that is rise in temperature will be from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. पहले उस थर्मली आइसोलेटेड पॉट में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बर्फ, और उसमें स्टीम जाने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा T1 विल बी 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा T1 हमें मिला. देन
CW that is specific heat of water. अब क्योंकि मास ग्राम में दिया है तो हम स्पेसिफिक हीट भी लिख रहे हैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में. नाउ देयर इज कन्वर्जन ऑफ ice into water, that is latent heat of fusion is needed. L1 is 80 calorie per gram. And for the second transition, conversion of steam having temperature 100 degrees Celsius, it is getting converted into water at 50 degrees Celsius. तो यहां पर इस दूसरे केस में जो डेल्टा T2 रहेगा, that is decrease in temperature from 100 degree to 50 degree. So 100 minus 50, that is 50 degree Celsius. That is delta T2. अब यहां पर क्या हो रहा है, वेपर का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में, that is latent heat of vaporization L2 540 calories per gram. तो ये दो वैल्यूज आपको बाय हार्ट करके ही रखना है वाटर के लिए. Latent heat of fusion 80 calories per gram and latent heat of vaporization 540 calories per gram. And then what you have to find out, the mass of steam. कितना steam हमें उसमें मिक्स करना है, M2 का वैल्यू हमें ढूंढना है. So by using this formula Q is equal to MC delta T. देखो ये तो मैंने जस्ट नॉमिनल लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसमें एक से ज्यादा मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज होंगे. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 4 अलग अलग प्रकार की हीट फाइंड आउट करना होगा. सी द फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय आइस. सबसे पहले तो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा जो हमने इस आइसोलेटेड पॉट में रखा है. तो आइस का कन्वर्जन स्टीम में होने के लिए एब्जॉर्ब किया गया हीट. देन आइस का कन्वर्जन जब वाटर में होगा उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस. तो आइस वाटर में मेल्ट होने के बाद उस वाटर का टेम्परेचर 0 to 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए लगने वाला हीट. समझ में आ रहा है? ये 2 अलग अलग हीट आपको मेजर करने पड़ेंगे. उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट जो उसमें मिक्स कर रहे, दैट इज स्टीम. उसमें भी 2 हीट आपको मेजर करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन, द हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर. स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होने के लिए लगने वाला हीट. और दूसरा, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय दैट वाटर. अब स्टीम का जब वाटर में कन्वर्जन होगा उसके बाद जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. लेकिन हमारा जो फाइनल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 50 डिग्री. तो 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए उस वाटर को कुछ हीट लूज करना पड़ेगा. वो हीट भी हमें कैलकुलेट करना है. सो इन शॉर्ट वी हैव टू कैलकुलेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट. लेट्स स्टार्ट and try to solve it one by one. Here is the first one. Heat absorbed by ice. आइस का कन्वर्जन वाटर में होने के लिए एब्जॉर्ब किया गया हीट. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल फॉर्मूला, कन्वर्जन M1 इंटू L1. M1 दिया है 150 ग्राम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज. तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिल रहा है 12,000 calories. Second one is the heat absorbed by water formed on melting of ice. आइस मेल्ट होने के बाद जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस. उसका टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब किया, दैट राइज इन टेम्परेचर के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय फॉर्मूला MC डेल्टा T. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, M1 इंटू CW इंटू डेल्टा T1. M1 मास दिया है 150 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 वाटर के लिए, और डेल्टा T1 जो कि हमने गिवन में फाइंड आउट किया है 50. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 7,500 कैलोरीज. देन Q3, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय द स्टीम. स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होने के लिए जितना हीट वो स्टीम लूज करेगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड अगेन बाय सिंपल फॉर्मूला M2L2, where M2 is the mass of steam which is not given, so M2 as it is, and L2 is latent heat of vaporization
540 calories. Then Q4 is the heat given out by water formed on condensation. कंडेंसेशन के बाद स्टीम का वाटर में कन्वर्जन होने के बाद जो वाटर हमारे पास है उसका भी टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मिक्सचर फाइनल मिक्सचर मिल रहा है आइस और वाटर का उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. तो वो डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिए कितना हीट फिर से वो वाटर लूज कर रहे हैं. दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला mc delta t. हियर m2 that is mass of steam into cw specific heat of water and delta t2 that is decrease in temperature. डेल्टा T2 का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 एंड m2 वी डोंट नो, सो एज इट इज m2 into 50 calories. Now according to principle of heat exchange, the amount of heat, total amount of heat Q1 and Q2 heat absorbed by ice and Q3 and Q4 total amount of heat lost by the steam must be equal. So if we substitute these values over here, we get 12,000 plus 7,500, m2 into 540 plus m2 into 50. इन दोनों में m2 कॉमन आ रहा है, so हमने उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा है. इन ब्रैकेट क्या आएगा 540 plus 50, that is 590 goes to another side in the denominator. 19,500 upon 590. So after division we get the answer in gram, 33.05 gram. This question is again from question number 9C, given on textbook page number 72. A calorimeter has mass 100 gram and specific heat 0.1 kilocalorie per kilogram degree Celsius. It contains 250 grams of liquid at 30 degrees Celsius having specific heat 0.4 kilocalorie per kilogram degree Celsius, which is present in the calorimeter. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degrees Celsius, what will be the temperature of the mixture? That you have to find out. Let's try to solve it down. Now from the mathematical problem, let's write down the given things first. Now here there are three important objects. First one is calorimeter. Second one is the liquid present in the calorimeter. And third one is the piece of ice. So let's consider them as M1, M2 and M3. M1 is the mass of calorimeter 100 gram. M2 is the mass of liquid that it contains, that is 250 gram. And M3 is the mass of piece of ice 10 gram. The temperature of calorimeter will be same as that of the liquid present in it. Calorimeter में present liquid का temperature 30 डिग्री सेल्सियस है, तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस. सो T1 का वैल्यू भी 30 डिग्री और T2 का वैल्यू भी 30 डिग्री सेल्सियस. बट द आइस विच वी आर गोइंग टू ऐड विल हैव टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. आइस का टेम्परेचर T3 हमने लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस. देन they have given specific heat of calorimeter. Calorimeter is made up of some different material like copper. So it has specific heat 0.1 kilocalorie per kilogram degree Celsius. But since the mass is given in gram, we have to convert it in terms of calorie and gram. So here I am writing 0.1 calorie per gram degree Celsius. The value will going to remain same. Then C2 is the specific heat of liquid present in the calorimeter, which is given 0.4 kilocalorie per kilogram degree Celsius. Again, the mass of liquid is also given in gram, so we have to convert it into smaller unit, 0.4 calorie per gram degree Celsius. And the third one is ice, which is nothing but water. So we know the value of specific heat C3, 1 calorie per gram degree Celsius.
Now, here, after adding the piece of ice, it going to melt. So here we need to write the latent heat of fusion, which is 80 calorie per gram. After adding these three together, we have to find out the final temperature of the mixture. हमें इन तीनों के मिश्रण का यानी लिक्विड जो कैलोरीमीटर में प्रेजेंट है उसमें आइस ऐड करने के बाद उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कैपिटल टी मेजर करना. तो यहां पर भी हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला रहेगा यही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी. लेट्स सी द सॉल्यूशन. हियर फॉर सॉल्यूशन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट 4 different types of heat. First one, Q1, that is heat lost by calorimeter. कैलोरीमीटर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और उसमें प्रेजेंट लिक्विड वो भी 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जब आइस ऐड होगा तो आइस के कंपैरिजन में ये लिक्विड और कैलोरीमीटर दोनों कैसे हैं? हॉट. सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स कैलोरीमीटर एंड लिक्विड विल गोइंग टू लूज सम हीट दैट यू हैव टू कैलकुलेट. So we can calculate Q1, the heat lost by calorimeter, by formula M1 C1 into delta T1. अब यहां पर डेल्टा T1 यानी क्या आएगा? हायर टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. हायर टेम्परेचर यानी इसका कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस माइनस मिक्सचर का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम ही होगा, तो इसके लिए हमने लिखा है यहां पर T1 माइनस T. उसी फॉर्मूला से हम हीट लॉस्ट बाय लिक्विड भी कैलकुलेट कर सकते हैं by using formula M2 C2 into delta T. अब यहां पर डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? 30 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दैट इज T2 माइनस T, क्योंकि दोनों ही T1 और T2 हायर टेम्परेचर पे, मिक्सचर का टेम्परेचर कम है, सो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T1 माइनस T एंड T2 माइनस T. देन थर्ड हीट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस. अब यहां पर आइस जो हीट एब्सॉर्ब करेगा फर्स्ट वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए यूज होगी, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय फॉर्मूला M3L, वेयर M3 इज द मास ऑफ आइस एंड L इज द latent heat of fusion. And after conversion of ice into water, the water will also have the temperature 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब हम उसको हॉट वाटर में, उस हॉट लिक्विड में डालेंगे जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इट विल गोइंग टू एब्सॉर्ब सम हीट. सो Q4 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग. आइस मेल्ट होकर जो पानी बनेगा वो भी कुछ हीट एब्सॉर्ब करेगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं फिर से इसी फॉर्मूला से M3 C3 इंटू डेल्टा टी. लेकिन इस बार क्योंकि आइस का टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर से कम है, इसके लिए हमने यहां पर लिखा है T माइनस T3. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, द हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर एंड लिक्विड दैट इज Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय आइस एंड वाटर दैट इज Q3 plus Q4. So here I am writing, according to the principle of heat exchange, Q1 plus Q2 heat lost by calorimeter and liquid must be equal to heat absorbed by ice and water. So let's write down the formulas which we have written on the previous page. Q1, Q2, Q3 और Q4. अब यहां पर जगह नहीं, इसके लिए इक्वल टू के आगे मैंने यहां पर लिखा है. नेक्स्ट, ये मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है M1 C1 इंटू T1 माइनस M1 C1 इंटू T प्लस M2 C2 इंटू T माइनस M2 C2 इंटू T इक्वल टू M3L एज इट इज प्लस ये भी अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा. लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें एक टर्म कैंसिल होने वाला है, इसके लिए हम यहां पर T3 का वैल्यू लिख देते हैं. T3 का वैल्यू है 0 डिग्री, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने उसका वैल्यू लिख दिया है T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस. आगे M1 C1 T T1 एज इट इज प्लस
M2C2T2 एज इट इज। ये जो माइनस M1C1T है इसको हमने अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया और ये भी माइनस M2C2T अपोजिट साइड में। तो देखो यहां पर ये दोनों टर्म्स मैंने इक्वल टू साइन के राइट साइड में लिखे हुए। M3L एज इट इज प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड से आया M1C1T, M1 M2C2T प्लस ये वाला टर्म। अब यहां पर M3C3 से T को ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आने वाला है। तो एक टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो गई है, सिर्फ M3C3T यहां पर लिखा है। नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज, M3L ऑन राइट हैंड साइड। अब इन तीनों में से T कॉमन आया, तो तीनों में से T कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, M1C1 प्लस M2C2 प्लस M3C3। अब यहां पर हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने, इन सब के वैल्यूज। M1 100 इंटू C1 0.1, T1 30, M2 C2 एंड T2 इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड M3L 10 इंटू 80, T जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है तो T हमने एज इट इज लिखा हुआ है और ब्रैकेट में M1C1 और इन सब के वैल्यूज हमने लिखे हुए। अब लेफ्ट हैंड साइड में 30 इंटू 100 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज 300। यहां पर भी 0.4 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाई 250 3000 इक्वल टू 10 इंटू 80 800 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 10 इंटू T। यहां पर ये प्लस 800 अपोजिट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 3300। यहां पर 120 इंटू T। अब हमें T का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इंटू 120 अपोजिट साइड में जाकर क्या होगा, डिवाइड। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 2500 डिवाइड बाय 120, इट कम्स आउट टू बी 20.83. So this is the final temperature of the mixture. Now here is the last fourth problem. If the steam of mass 100 gram and temperature 100 degrees Celsius is released on an ice slab of temperature 0 degrees Celsius, how much ice will melt? अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट वन इज स्टीम एंड सेकेंड वन इज आइस। मास ऑफ स्टीम M1 is given 100 gram and temperature is given 100 degrees Celsius. We know the specific heat of water, that is C is equal to 1 calorie per gram. Now here steam is getting converted into water, so we need latent heat of वेपराइजेशन ओवर हियर। वेपर का कन्वर्जन, स्टीम का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, सो दैट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट आइस विच वी आर एडिंग इनटू इट हैविंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो T2 का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस और आइस जब वाटर में डाल दिया जाएगा या स्टीम में डाल दिया जाएगा उस के लिए हमें चाहिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L2, that is 80 calorie per gram, and we need to find out the mass of ice slab which gets melted. कितना आइस मेल्ट होगा वो हमें ढूंढना है, that is M2 का वैल्यू हमें ढूंढना है by using formula Q is equal to MC delta T. Now here you have to calculate three different heats. First one, Q1 is the heat required for conversion of steam into what? Steam का conversion water में होने के लिए कितना heat use होगा? That is M1 into L1, mass of steam into latent heat of vaporization. Second one, अब वेपर का कन्वर्जन या स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होने के बाद उस वाटर का भी टेम्परेचर कितना रहेगा? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, उसमें जब आइस स्लैब डाला जाएगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द हीट एब्सॉर्ब्ड
or the heat required for decrease in temperature of water formed. आइस से जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए कितना हीट यूज होगा. दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला mc डेल्टा t हम लिख सकते हैं m1 c1 और डेल्टा t के लिए यहां पर आएगा T1 माइनस T2 क्योंकि T1 का वैल्यू है 100 डिग्री और T2 का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस. देन थर्ड हीट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय आइस. आइस का कन्वर्जन वाटर में होने के लिए कौन सा हीट यूज होगा, कितना हीट यूज हो रहा है. दैट इज m2 इंटू L2, मास ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, the heat lost by steam and the hot water must be equal to heat absorbed by the ice lamp, that is Q3. So let's substitute the values. Q1 जिसका वैल्यू हमने लिखा है m1 L1, Q2 m1 C1, T1 माइनस T2, T2 का वैल्यू कितना था 0 और Q3 m2 L2. सभी के वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लीकेशन करना है. यहां पर आ रहा है 54,000 प्लस 100 इंटू 100 10,000. सो इनका एडिशन आ रहा है 64,000. यहां पर हमें m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये 80 मल्टीप्लाई है अपोजिट साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा. तो यहां पर हमें m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 80 अपोजिट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो 64,000 डिवाइड बाय 80 कम्स आउट टू बी 800 ग्राम. सो दीज लास्ट 4 mathematical problems are bigger one and quite complicated. You have to practice them twice or thrice. These last 4 problems, that is type 3 problems, can be asked in the exam for 3 marks, and the first 2 types, type 1 and type 2, can be asked for 2 marks. So practice all the mathematical problems and solve it by yourself in the notebook.